नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। आप देख रहे हैं देश की बात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा? योगी के नाम पर ही पार्टी चुनाव लड़ रही है तो निश्चित ही उनका नाम ही आगे है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरे होंगे, लेकिन कांग्रेस का कौन होगा, इस पर प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया, उसके बाद वो उससे पीछे हटी। तो मायावती ने उन्हें इस मसले पर अब एक तरह से उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव में कांग्रेस की हालत इतनी ज्यादा खस्ताहाल बनी हुई है कि इनकी सीएम उम्मीदवार ने कुछ घंटों के अंदर ही अपना स्टैंड बदल दिया। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर वोट खराब न करें, बल्कि एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही वोट दें। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि वो यूपी से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। एनडीटीवी के ग्रुप एडिटर श्रीनिवासन जैन के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि पार्टी में उनके चुनाव लड़ने पर विचार हो रहा है। ये भी उन्होंने कहा कि ये नहीं मान सकते कि मैं मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हूं। हालांकि कांग्रेस का घोषणा पत्र जब जारी हुआ था शुक्रवार को, तब उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि क्या आपको दिख नहीं रहा है कि चारों तरफ किसका चेहरा है, चारों तरफ मेरे अलावा आपको और कौन नजर आता है। तो ये जो बात उन्होंने कही थी, इसके बाद ये बात चली कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बाद में वो इससे पलट गई। उन्होंने कहा कि ये उन्होंने एक तरह से मजाक किया था जब पत्रकारों ने बार बार उन्हें परेशान किया। युवा का जो भविष्य है उसके लिए You are building on the ground, but the lack of a leadership structure or a face in Uttar Pradesh remains a challenge. I just saw that you had a press conference where you said, when they were asked, "Koi chehra kaun hai?" I was being a bit tongue in cheek. Okay, but you said that you are the chehra. No, well, I said, I mean, look, because I'm asked this question, every second question is the same question. Yes. Now, clearly, I am the General Secretary of Uttar Pradesh, and in most ways between me and Ajay Lallu ji, who's the Pradesh Adhyaksh, and Mona ji, who's the CLP leader, we are leading the effort in Uttar Pradesh. Now, you said your face is on every poster. It is. So, but I mean, whether now officially we have to say that this is the face or that is the face, I mean, it's unlikely that we're going to do that. But you're saying it's safe to assume that you are the sort of no, it's not face safe. of You can't put words in my mouth. Okay. I'm not saying that it's safe to assume. I'm saying that I am the General Secretary of Uttar Pradesh. The responsibility for Uttar Pradesh is mine, and I'm dealing with it. Why aren't you fighting the elections then? Well, you don't know yet whether I am or not. So. Okay. Is that an open question? It's an open question for now. So you might fight the election if it comes to it. I may well. Okay. Have you given any thought to where you might want to fight from, or? I've left this discussion for a little bit later. So when we do have the discussion, and if at all I decide to fight, I will let you know. That's interesting. Can we assume from that you are also, in a sense, positioned as the Congress's chief ministerial candidate in UP? No, I don't think you should make assumptions like that. I have clearly said that that is not the case. Okay. I have clearly said just now also to you. Of course, I did. I made a tongue-in-cheek remark at the press conference, but no. I don't think it's fair to assume that. But at least we can say that you are considering fighting these elections. That's not, we won't be wrong in saying that. No. And the discussion is on amongst us internally in the party in Uttar Pradesh. And when we come to some consensus about it, we'll let you know. Is there a possibility, as some have suggested, that you might be fighting against Yogi Adityanath? No. That's not on the cards? No. तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि प्रियंका गांधी क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी तो कहां से। हालांकि ये उन्होंने साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है पार्टी की तरफ से, लेकिन वो अगुवाई कर रही हैं इस पूरी मुहिम की जो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में की हुई है शुरू, और जिसमें लड़की हूं लड़ सकती हूं का अभियान सबसे आगे है, जिसके तहत 40% सीटें कांग्रेस महिला उम्मीदवारों को दे रही है। उधर बीजेपी की भी कई महिला नेता आज लखनऊ में जुटी और एक साथ नजर आई। इनमें कई नई ऐसी नेता हैं जो अभी हाल में बीजेपी में शामिल हुई हैं। रायबरेली सदर की उम्मीदवार अदिति सिंह जो बीजेपी में अभी आई, कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हैं,
और समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव भी इस दौरान मौजूद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस इन सब ने मिलकर की है और कहा कि योगी सरकार की योजनाएं महिलाओं के लिए हैं। अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रवाद की वजह से वो इस पार्टी में आई हैं और राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाना चाहती है। बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी है। सारी योजनाएं जो है 80% योजनाएं जो है मैं मानती हूँ वो महिलाओं के हित में बनाई जा रही है। यही सारी चीजें मैं क्षेत्र में भी अपने लोगों को समझाती हूँ, वो इस चीज से बिल्कुल संतुष्ट है। मैं आपसे उस दिन भी जिस दिन मैंने ज्वाइन करी थी पार्टी, मैं आज भी वही बात कहना चाहती हूँ कि मैंने इस पार्टी को राष्ट्रवाद की वजह से चुना है। हम सब इस पार्टी से राष्ट्रवादिता की वजह से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र को बचाना है। हमें फिर से अगर कुछ भी अच्छा करना है अपने इस राष्ट्र के लिए तो भाजपा सरकार को हमें पूरे दम से लाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। और आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही मुद्दे अपने गाजियाबाद के दौरे के दौरान, लोगों से बातचीत के दौरान और प्रचार के दौरान उठाए। आज वो घर घर प्रचार अभियान के तहत गाजियाबाद में थे। यहाँ के कुछ इलाकों का दौरा किया, मोहन नगर की वाल्मीकि बस्ती में गए और उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कि 2017 से पहले यूपी में डर का जो माहौल था, बेटियां स्कूल तक नहीं जा पाती थी, वो माहौल बदला है। उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं सुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था काफी बेहतर हुई है। उन्होंने अखिलेश यादव को उनके मुफ्त बिजली के वादे पर भी घेरा। अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, ये कहते हुए कि अगर वो सत्ता में आए तो ऐसा करेंगे। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चोरों का चांदनी रात अच्छी नहीं लगती और जब बिजली देते नहीं है तो फ्री बिजली देने का सवाल ही कहाँ है। उनका कहना कि 2017 से पहले यूपी में बिजली थी कहाँ। बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन करने का और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का, ये भारतीय जनता पार्टी का पहला फैसला था सरकार का। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में आई थी। पहला फैसला क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है भाइयों बहनों, ये फर्क साफ है। प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। भाइयों बहनों, पहले यहां के व्यापारियों से, यहां के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए बिजली जब आती नहीं थी तुम बिजली नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। तो ये लोग बिजली दें, जब बिजली नहीं आएगी तो बिजली फ्री में करने की बात कहां से करते हो जी? क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्यों आंखों में धूल झोंकने का काम करते हो? तो योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में घर घर प्रचार अभियान के तहत लोगों से मिले। उनके साथ गाजियाबाद से जो सांसद वीके सिंह हैं वो भी थे मौजूद। लेकिन इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती दिखी। कई जगहों पर लोग इतने एक दूसरे के करीब थे, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि
कोरोना के नियमों का पालन होता हुआ ठीक से दिखाई नहीं। हालांकि कुछ लोग मास्क पहने जरूर आसपास दिखाई दिए, लेकिन दूर जो लोग खड़े थे उनमें से कई ने मास्क नहीं पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल उन्होंने नहीं रखा। तो मुकेश सिंह सेंगर दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में विधानसभा चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और उसी को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी जोर आजमाइश इसी इलाके में लगा रही हैं। इस वक्त मैं हूं गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में और यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ये देखिए गाजियाबाद में उनके साथ तमाम जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो भी मौजूद हैं और किस तरह से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा इलाका है ये वाल्मीकि बस्ती है मोहन नगर की और यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ हैं वो पहुंचे, उन्होंने यहाँ के तमाम प्रबुद्ध लोगों से बात की, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये देखिए योगी आदित्यनाथ अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और उन्होंने यहाँ बस्ती में कई लोगों से बात की और डोर टू डोर कैंपेन की। हालांकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है और कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ रही हैं क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है। चुनाव आयोग ने केवल 10 लोगों को परमिशन दी है डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है। आप देखिए कि काफी ज्यादा भीड़ है। किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए चुनौती है और उसी को देखते हुए पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह कैराना पहुंचे थे, उन्होंने भी डोर टू डोर कैंपेन किया। इसके बाद यूपी के सीएम वो योगी आदित्यनाथ हैं, वो आज गाजियाबाद पहुंचे हैं। हाल ही में ये उनका तीसरा दौरा है। तो यहाँ पर अलग अलग वर्ग के तमाम जो वोटर हैं उनको रिझाने की कोशिश की जा रही है और उसी के तहत ये डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है। गाजियाबाद से कैमरामैन जेवर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को अपने विधानसभा चुनाव सिराथू पहुंचे, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, और उन्हें यहां महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने उनके लिए काफी सख्त शब्दों का इस्तेमाल यहां किया और ये वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मौर्य का ही एक करीबी सहयोगी पिछले 3 दिनों से लापता है। केशव प्रसाद मौर्य उसके ही घर पहुंचे थे और परिवार ने वहां इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई न होने से अपनी नाराजगी जताई, साथ खुलकर अपना विरोध जताया वहां मौजूद लोगों ने, और इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य वहां से निकल गए। हालांकि इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन करता नहीं दिखा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के लिए अपने ही चुनाव क्षेत्र में इस तरह की स्थिति असहज करने वाली है। उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश वर्मा ने चुनाव आयोग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। काफी संख्या में लोगों के साथ गांव-गांव जाकर उन्होंने वोट मांगे और इस दौरान किसी ने मास्क भी नहीं लगाया था। जबकि चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए, यानी आप घर घर जाकर जब प्रचार करते हैं तो उस दौरान भी कहा है कि आप मास्क लगाएंगे, सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी का पालन करेंगे। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि इन सब दिशा निर्देशों पर अमल करने वाला कोई है नहीं, न किसी को इस बात की फिक्र है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा हैं भगवंत मान, जो इस बार संगरूर की धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। भगवंत मान मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनने और धुरी से उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहली बार आज अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से यहां सरकार बनाएगी। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट। संगरूर जिले के धुरी निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव में पहुंचे पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान। गांव वाले इस उम्मीद में स्वागत करते दिखे कि इस बार उनका विधायक पंजाब का मुख्यमंत्री बन सकता है। भगवंत मान जितुआ जी। हाँ, इनका काम ठीक लग रहा है आपको? हाँ जी, बहुत बढ़िया। सांसद के तौर पर ठीक था? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तुसी दसो जी। बिल्कुल भगवंत मान ईमानदार लीडर है जी। भगवंत मान ऐती झाड़ू फेरूगा ਧੂਰੀ ਤੋਂ। ਉਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪ ਮੱਕੜ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਆਪ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਦੇਖੇ।
यहाँ पर धुरी क्षेत्र में आए नहीं आए, क्या कितना कैसा रहेगा, जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे? आप ये बताओ, ये नेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाँ। पार्टी को। भगवंत मान ने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखो प्रचंड बहुमत आएगा, 80 से ऊपर, 90 से ऊपर। अब इनको क्या, मैं इनके दिल की क्या जानता हूँ, इन्होंने ठान ली तो ठान ली। पिछले विधानसभा चुनावों में भगवंत मान तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल को उनके गढ़ जलालाबाद में टक्कर देने पहुंचे थे, लेकिन इस बार अपने संगरूर लोकसभा क्षेत्र में सुरक्षित मानी जा रही धुरी सीट से वो मैदान में हैं। वो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को धुरी से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। चन्नी साहब ने कल चैलेंज किया है कि भगवंत मान मेरे खिलाफ चमकौर साहब से लड़े। हाँ। वो तो रिजर्व सीट है, मैं वहां से लड़ नहीं सकता। मैं चन्नी साहब को आग्रह करता हूँ, आ जाओ धुरी, आ जाओ, देखते हैं। धुरी निर्वाचन क्षेत्र में वोटों के पैटर्न को देखें तो 2014 के संगरूर लोकसभा चुनाव में करीब 34,000 वोट और 2019 के संगरूर लोकसभा चुनाव में करीब 24,000 वोटों से भगवंत मान ने यहां अच्छी बढ़त बनाई थी। लेकिन 2017 विधानसभा चुनावों में 3,000 वोटों से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ये सीट हार गए थे। पिछले 2 चुनावों में यहां से कांग्रेस ही जीत रही है। इस बार भगवंत मान यहां से मैदान में हैं और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने का फायदा उन्हें मिल सकता है। धुरी के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि ये चुनाव तय करेंगे कि धुरी पंजाब की राजनीति की धुरी बनेगा या नहीं। धुरी विधानसभा क्षेत्र से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले कई चैनल और अखबार लगातार ओपिनियन पोल छाप रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने इस पर एतराज जताया है। आज चुनाव आयोग को एक पत्र समाजवादी पार्टी ने लिखा और कहा कि नतीजे आने तक ओपिनियन पोल पर रोक लगाई जाए। ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हैं। सौरभ, और इस पत्र में क्या कहा गया है? देखिए सुशील, लगातार जिस तरीके से कई ओपिनियन पोल दिखाए गए इस हफ्ते में, जिसमें समाजवादी पार्टी को काफी पीछे दिखाया जा रहा है, उसको लेकर के एक लेटर लिखा हुआ है प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने चुनाव आयोग को, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो 8 जनवरी को लग गया है और अभी प्रथम चरण का नामांकन खत्म हुआ है। तो ऐसे में जिस तरीके से वोटिंग से पहले लगातार ये ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं, उसको लेकर के माहौल और मतदाता भ्रमित हो रहा है, जिस वजह से चुनाव भी प्रभावित हो सकता है। यही कारण देते हुए समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि एक जो महत्वपूर्ण पंक्ति जो लिखी है उसमें लिखा है, स्वतंत्र निष्पक्ष निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए न्यूज चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। तो ये लेटर आज ही लिखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से चाहे वो कई निजी चैनल हैं, कई निजी एजेंसीज हैं, वो ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं और फिर उस पर ओपिनियन पोल पे वो डिबेट करते हैं, 2-3 दिन तक वो ओपिनियन पोल चलाए जाते हैं, उसमें सीट बताई जाती हैं। उसको लेकर के उनका कहना है कि वोटर दिग्भ्रमित हो रहा है। और इन तमाम ओपिनियन पोल्स में सुशील आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी को बीजेपी से काफी पीछे दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके वोटर्स में उनका माहौल खराब हो रहा है। यही वजह है कि उन्हें लेटर लिख करके चुनाव के नतीजे आने तक ओपिनियन पोल पर बैन करने की मांग की है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये जो मांग है समाजवादी पार्टी की, इस पर देखना है कि चुनाव आयोग का क्या प्रतिक्रिया चुनाव आयोग की आती है। वक्त एक ब्रेक का। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से पराक्रम। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कर दिया है। होलोग्राम प्रतिमा वो प्रतिमा होती है जिसे लाइट के इफेक्ट्स के जरिए दिखाया जाता है। एक तरह की 3D प्रतिमा दिखती है, हालांकि एक आभासी प्रतिमा है, वास्तविक प्रतिमा नहीं होती। इस जगह पर नेताजी की 28 फुट बाई 6 फुट की एक वास्तविक प्रतिमा तैयार कराई जा रही है और जब तक वास्तविक प्रतिमा आती है तब तक ये होलोग्राम प्रतिमा यहां पर इस छतरी के नीचे मौजूद रहेगी। इंडिया गेट पर नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर इस प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। ये इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है इंडिया गेट पर। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम केंद्रीय मंत्री और खास मेहमान इस मौके पर वहां मौजूद हैं। को कैपेसिटी बिल्डिंग अवेयरनेस तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा। 2020 के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है श्री के.एम. सिंह, पूर्व डीजी CISF। आपने 3-tier डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म के निर्माण की नींव रखी। आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में सिविल डिफेंस के एक्टिव पार्टिसिपेशन की परिकल्पना को भी आपने प्रतिपादित किया। 2020 के लिए ही डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री SA मुरुगेसन IAS। DMMC का कार्य आपदा पूर्व तैयारी, कैपेसिटी बिल्डिंग, आपदा के बाद की प्रतिक्रिया तथा रिहैबिलिटेशन पर केंद्रित है। वैज्ञानिक तथा शैक्षिक संस्थाओं और राज्यों के विभागों के बीच संवाद स्थापित किया जाता है। 2021 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है श्री राजेंद्र कुमार भंडारी को। आप डिजास्टर मिटिगेशन पर इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग फोरम के अध्यक्ष हैं। आपने भारत में जियो हैजार्ड्स और भूस्खलन पर वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी। भूस्खलन अध्ययन की पहली प्रयोगशाला भी स्थापित की। 2021 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स को। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर अंशु शर्मा। सीड्स पिछले 28 सालों से आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से प्रभावित हो सकने वाले लोगों को रेजिलियंस निर्माण की दिशा में काम कर रही है। 2022 के लिए प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत में DRR में आपके अग्रणी कार्य ने आपको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष के रूप में आपने सिक्किम को DRR लागू करने में एक आदर्श राज्य बनाया है। 2022 के लिए ही गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री PK तनेजा DG। GIDM ने पेंडेमिक के दौरान मल्टी हैजार्ड रिस्क मैनेजमेंट तथा रिडक्शन के लिए 12,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया। फायर से संबंधित पोर्टल, कोविड से संबंधित मोबाइल ऐप भी विकसित किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका और सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई। भारतवासियों, मां भारती आज गर्वित है कि उसके वीर पुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस अनन्य अनुगामी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मां भारती की सुरक्षा, समृद्धि तथा जनता की सेवा के लिए सदैव बेचैन रहते हैं, जो स्वयं से आगे स्वदेश रखते हैं, स्वमेव से आगे ध्येय रखते हैं, जो देश हित में कड़ी से कड़ी चुनौती से डटकर जूझ दिल्ली के इंडिया गेट पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए हैं 2019 से 2022 तक के वर्ष के लिए। इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं, इस वक्त ये चल रहा है और इसमें कई गणमान्य अतिथि मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह हैं यहाँ पर। और जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की प्रतिमा तैयार नहीं हो जाती, इस जगह पर उनकी ये होलोग्राम प्रतिमा लगी रहेगी। 28 फीट बाई 6 फीट की एक प्रतिमा यहाँ पर बनाई जानी है सुभाष चंद्र बोस की और प्रधानमंत्री अब इस प्रतिमा के अनावरण के बाद संबोधित कर रहे हैं। श्री हरदीप पुरी जी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, आयन के सभी ट्रस्टी, NDMA के सभी सदस्यगण,
जूरी मेंबर्स, एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड्स और आईएमडी के डायरेक्टर जनरल्स, आपदा प्रबंधन पुरस्कारों के सभी विजेता साथी, अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर पूरे देश की तरफ से मैं आज कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है, ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सभी एकत्रित हैं वो भी ऐतिहासिक है। भारत के लोकतंत्र की प्रतीक हमारी संसद पास में है, हमारी क्रियाशीलता और लोकनिष्ठा के प्रतीक अनेक भवन भी हमारे साथ पास में नजर आ रहे हैं, हमारे वीर शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी पास है। इन सब के आलोक में आज हम इंडिया गेट पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। साथियों, पिछले साल से देश ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। आज पराक्रम दिवस के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिए गए हैं। नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेकर ही इन पुरस्कारों को देने की घोषणा की गई थी। साल 2019 से 2022 तक उस समय के सभी विजेताओं, सभी व्यक्तियों, सभी संस्थाओं को जिन्हें आज सम्मान का अवसर मिला है, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में
आपदा प्रबंधन को लेकर जिस तरह का रवैया रहा था, उस पर एक कहावत बहुत सटीक बैठती है, जब प्यास लगी तो कुआं खोदना। और जिस मैं काशी क्षेत्र से आता हूं, वहां तो एक और भी कहावत है। वो कहते हैं, भोज गड़ी कोहड़ा रोपे, यानी जब भोज का समय आ गया तो कोहड़े की सब्जी उगाने लगना। यानी जब आपदा सिर पर आ जाती थी तो उससे बचने के उपाय खोजे जाते थे। इतना ही नहीं, एक और हैरान करने वाली व्यवस्था थी जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। हमारे देश में वर्षों तक आपदा का विषय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास रहा था। इसका मूल कारण यह था कि बाढ़, अतिवृष्टि, ओले गिरना, ऐसी जो स्थितियां पैदा होती थी, उसे निपटने का जिम्मा, उसका संबंध कृषि मंत्रालय से आता था। देश में आपदा प्रबंधन ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन 2001 में गुजरात में भूकंप आने के बाद जो कुछ हुआ, देश को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर किया और उसने आपदा प्रबंधन के मायने बदल दिए। हमने तमाम विभागों और मंत्रालयों को राहत और बचाव के काम में झोंक दिया। उस समय के जो अनुभव थे, उनसे सीखते हुए ही 2003 में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। आपदा से निपटने के लिए गुजरात इस तरह का कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। बाद में केंद्र सरकार ने गुजरात के कानून से सबक लेते हुए 2005 में पूरे देश के लिए ऐसा ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। इस कानून के बाद ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके गठन का रास्ता साफ हुआ। इसी कानून ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी देश की बहुत मदद की। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए 2014 के बाद से हमारे सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर चौतरफा काम किया है। हमने रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, उस पर जोर देने के साथ साथ ही रिफॉर्म पर भी बल दिया है। हमने एनडीआरएफ को मजबूत किया, उसका आधुनिकीकरण किया, देश भर में उसका विस्तार किया, स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर प्लानिंग और मैनेजमेंट तक बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस को अपनाया। हमारे एनडीआरएफ के साथ ही सभी राज्यों के एसडीआरएफ्स और सुरक्षा बलों के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर एक एक जीवन को बचाते हैं। इसलिए आज ये पल इस प्रकार से जान की बाजी लगाने वाले, औरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी का दांव लगाने वाले, चाहे वो एनडीआरएफ के लोग हो, चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, हमारे सुरक्षा बलों के साथी हो, ये सब के सब उनके प्रति आज आभार व्यक्त करने का, उनको सैल्यूट करने का ये वक्त है। साथियों, अगर हम अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करते चलें तो आपदा से निपटने की क्षमता दिनों दिन बढ़ती चली जाती है।
मैं इसी कोरोना काल के 1-2 वर्ष की बात करूं तो इस महामारी के बीच भी देश के सामने नई आपदाएं आकर खड़ी हो गई। एक तरफ कोरोना से तो लड़ाई लड़ी रहे थे, अनेक जगहों पर भूकंप आए, कितने ही क्षेत्रों में बाढ़ आई, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी तटों पर साइक्लोन आए, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी तटों पर भी साइक्लोन आए। पहले एक एक साइक्लोन में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। देश ने हर चुनौती का जवाब एक नई ताकत से दिया। इसी वजह से इन आपदाओं में हम ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाने में सफल रहे। आज बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत के इस सामर्थ्य, भारत में आए इस बदलाव की सराहना कर रही है। आज देश में एक ऐसा एंड टू एंड साइक्लोन रिस्पांस सिस्टम है जिसमें केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासन और सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर के काम करती हैं। बाढ़, सूखा, साइक्लोन, इन सभी आपदाओं के लिए वार्निंग सिस्टम में सुधार किया गया है। डिजास्टर रिस्क एनालिसिस के लिए एडवांस टूल्स बनाए गए हैं। राज्यों की मदद से अलग अलग क्षेत्रों के लिए डिजास्टर रिस्क मैप्स बनाए गए हैं। इसका लाभ सभी राज्यों को, सभी स्टेक होल्डर्स को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन आज देश में जन भागीदारी और जन विश्वास का विषय बन गया है। मुझे बताया गया है कि एनडीएमए की आपदा मित्र जैसी स्कीम से युवा आगे आ रहे हैं, आपदा मित्र के रूप में जिम्मेवारियां उठा रहे हैं, यानी जन भागीदारी बढ़ रही है। कहीं कोई आपदा आती है तो लोग विक्टिम नहीं रहते, वो वॉलेंटियर्स बनकर आपदा का मुकाबला करते हैं। यानी आपदा प्रबंधन अब एक सरकारी काम भर नहीं है, बल्कि ये सबका प्रयास का एक मॉडल बन गया है। और साथियों, जब मैं सबका प्रयास की बात करता हूं तो इसमें हर क्षेत्र में हो रहा है प्रयास, एक होलिस्टिक अप्रोच भी शामिल है। आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में भी कई सारे बदलाव किए हैं। जो सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, आर्किटेक्चर से जुड़े कोर्सेज होते हैं, उसके पाठ्यक्रम में डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर की रचना कैसी हो उस विषयों को जोड़ना, ये सारे काम प्रयासरत है। सरकार ने डैम फेलियर की स्थिति से निपटने के लिए डैम सेफ्टी कानून भी बनाया है। साथियों, दुनिया में जब भी कोई आपदा आती है तो इसमें लोगों की दुखद मृत्यु की चर्चा होती है कि इतने लोग मृत्यु हो गई, इतना ये हो गया, इतने लोगों को हटाया गया। आर्थिक नुकसान भी बहुत होता है, उसकी भी चर्चा की जाती है। लेकिन आपदा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है वो कल्पना से परे होता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ऐसा हो जो आपदा में भी टिक सके, उसका सामना कर सके। भारत आज इस दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है। जिन क्षेत्रों में भूकंप, बाढ़ या साइक्लोन का खतरा ज्यादा रहता है, वहां पर पीएम आवास योजना के तहत बन रहे घरों में भी इसका ध्यान रखा जाता है। उत्तराखंड में जो 4 धाम
महापरियोजना का काम चल रहा है उसमें भी आपदा प्रबंधन का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में जो नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उनमें भी आपदा प्रबंधन से जुड़ी बारीकियों को प्राथमिकता दी गई है। आपात स्थिति में एक्सप्रेस वे विमान उतरने के काम आ सके इसका भी प्रावधान किया गया है। यही नए भारत का विजन है, नए भारत के सोचने का तरीका है। साथियों, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की इसी सोच के साथ भारत ने दुनिया को भी एक बहुत बड़ी संस्था का विचार दिया है, उपहार दिया है। यह संस्था है CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत की इस पहल में ब्रिटेन हमारा प्रमुख साथी बना है और आज दुनिया के 35 देश इससे जुड़ चुके हैं। दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में, सेनाओं के बीच में हमने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत देखी है, पुरानी परंपरा है, उसकी चर्चा भी होती है। लेकिन भारत ने पहली बार डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ज्वाइंट ड्रिल की परंपरा शुरू की है। कई देशों में मुश्किल समय में हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी एजेंसियों ने अपनी सेवाएं दी है, मानवता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। जब नेपाल में भूकंप आया, इतनी बड़ी तबाही मची, तो भारत एक मित्र देश के रूप में उस दुख को बांटने के लिए जरा भी देरी नहीं की थी। हमारे NDRF के जवान वहां तुरंत पहुंच गए थे। डिजास्टर मैनेजमेंट का भारत का अनुभव सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। आप सभी को याद होगा 2017 में भारत ने साउथ एशिया जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था। वेदर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उसका लाभ हमारे दक्षिण एशिया के मित्र देश को मिल रहा है। साथियों, परिस्थितियां कैसी